Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching online classes of Scottish Public School. Today, we are going to continue this chapter of political science. What is democracy and why democracy? We are going to take this chapter ahead today. So, please go to the page number 9, and we will take this chapter ahead today in this lecture. This is political. Chapter 1. What is democracy? And why democracy? What is democracy and why democracy? This chapter is the topic. Today we are going to take this chapter ahead on page number 9. Please go there. I would like to request all the students of class 9, please listen to the video, listen to my voice, play the video, keep your mobile beside you and look at the book. You have to look at the book line wise so that you can understand the content better. So today we are going to take this chapter ahead from the topic why democracy, topic number 1.3. Why democracy? An argument broke out in the Madam Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what the democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. As we all know that this chapter was based in the class conversation Madam Lingdo was teaching her students. She taught the entire topic, what is democracy, why democracy, what is free election, how a democracy really should work, what are the important fabrics of the democracy, how we can consider a democracy in its real meaning. So now she is asking the students which form of the government did they like most. So, debating merits of the democracy. Yolanda is a student of that class. We live in a democratic country all over the world. People want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said that nice thing about the democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? This girl, Yolanda is saying, Yolanda कह रही है कि डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि दुनिया के जितने भी महान हस्ती हुए हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे अरस्तु हो, मैकाइवर हो, जितने भी लोग हुए हैं, इन सभी लोगों ने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को ही कहा है. तो क्या हमें डेमोक्रेसी को खुशी खुशी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मान लेना चाहिए? क्या इसे हमें डिबेट करने की भी जरूरत है मैडम? एलांडा ऐसा कहती है. नेक्स्ट स्टूडेंट है टैंकिनी क्या बोल रही है? बट लिंगडो मैडम हैड said we should not accept something just because it is famous. हमें कोई भी बात इसलिए नहीं स्वीकार करनी चाहिए कि वो बात बहुत फेमस हो चुकी है, उसे बड़े बड़े लोगों ने कहा है. हमें किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसे अपने बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपने मानस पटल, चेतन पटल पर उसे घिसकर परखना चाहिए कि यह सच्ची बात है या झूठी बात है. कोई व्यक्ति आता, कोई बहुत बड़ा आदमी आता और आपको एक रिंग देता, कहता है ये सोने का रिंग है, तो क्या आप उस पर अंधा विश्वास करेंगे ये सोने की अंगूठी? नहीं, बल्कि पहले उसे हमें परखना चाहिए सोने की चमक कैसी है, सोने का वेट कैसा है, और उसे परखने की कोशिश करनी चाहिए. उसे जब तक हम चेक ना करें, संतुष्ट ना हो कि यह असली सोना है या नकली, तब तक हम नहीं कह सकते. ठीक उसी प्रकार किसी भी बड़े व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसी विचारधारा जो बहुत ही पॉपुलर हो गई हो, उसे हमें सच नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि अपने विवेक से सोच विचार कर उसके मेरिट्स डिमेरिट्स का कंपैरिजन करके ही हम अपने निर्णय को लें तो बेहतर होगा. Just because everyone else has accepted it
it isn't possible that everyone is following the wrong path. सभी लोगों ने अगर मान लिया उसी चीज को तो क्या वो सही होगा? हो सकता है कि सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कई बार होती है ऐसी बातें, भेड़ों की जब झुंड चलती है, भेड़ जब चलती है, चलते चलते रास्ते में अगर एक कुआं आता है, एक भेड़ गिरती है, उसमें सारी भेड़ें जाकर कुएं में गिरती हैं। इसे हम कहते हैं भेड़ चाल। और हमारे देश में, हमारे आज के वर्ल्ड में ज्यादातर लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कोई चीज जब ट्रेंडी हो जाती है, सारे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। आप देखेंगे एज यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आज से 5 साल पहले तक सभी बच्चे नौजवान बहुत ही क्लीन से एकदम हैंडसम बन के रहते थे, और एक ट्रेंड चल पड़ा जिसमें कि बहुत सारे फुटबॉलर्स और क्रिकेट खिलाड़ी लाइक विराट कोहली वगैरह ने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। आज ये ट्रेंड चल पड़ा, सारे ही 18 से ऊपर वाले लड़के सभी दाढ़ी रख रहे हैं। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आपके लुक्स अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, आप पहले से और गंदे दिख रहे हैं कि अच्छे दिख रहे हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी, विराट कोहली ने रखा तो सभी ने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। ये एक ट्रेंड है, इसे कहते हैं भेड़ चाल। अपने विवेक से देखिए कि वही, क्या प्रोफेशन आपका वही है? क्या आपको भी फिजिकल अपीयरेंस की उतनी इंपॉर्टेंस है? क्या दाढ़ी रख के आप अच्छे दिख रहे हो? उसका कॉम्प्लेक्शन किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, क्या सभी पे दाढ़ियां सूट करती है, जचती है? क्या आपके चेहरे को और गंदा नहीं रखता? उसमें डस्ट पार्टिकल जाकर और ज्यादा उसको और गंदा नहीं बनाता? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ट्रेंड, जो ट्रेंड चल पड़ता है, लोग ट्रेंड के पीछे चलते हैं, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। इसी तरह से टैंकिनी का यही कहना है, क्या सभी ने कह दिया कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है तो डेमोक्रेसी को हम अच्छा मान लें? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे अपने विवेक पर, अपने मानस पटल पर उसे हम देखेंगे, परख कर, whether it is correct or wrong. If it is wrong, we should just leave it. If it is okay, we should follow it. Jenny, next student, Jenny, she is saying, yes, it is actually a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy, and there is no much poverty in the country, and there is so much poverty in the country. क्या फर्क पड़ता है लोकतंत्र से? लोकतंत्र हम कहते हैं लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हमारे देश को चला रही है, लेकिन क्या फायदा है इससे लोकतंत्र का, जहां 70 वर्ष हो चुके हैं हमारी आजादी को, और आज भी हमारे देश में करोड़ों ऐसे गरीब हैं। आज हमारे देश में ऐसी संख्या है, ऐसी जनसंख्या है, 20 करोड़ लोग भूखे पेट रात को सोने जाते हैं। क्या फायदा है इस डेमोक्रेसी का? आज लोग अस्पतालों के बिना, विद्यालय के बिना, कॉलेज के बिना, स्कूलों के बिना अशिक्षित रह रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, उनका समय पर इलाज नहीं हो पाता। तो ऐसे डेमोक्रेसी का क्या फायदा है? जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता का ही भला नहीं कर पा रही है, ऐसी सरकारों का भी क्या फायदा? डेमोक्रेसी करते रहने से क्या फायदा? रिबेन कहता है, but what has a democracy go to do with it? Do we have poverty because of the democracy, or do we have poverty despite being a democracy? क्या सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए हम गरीब हैं? ऐसी भी बात नहीं है। सिर्फ डेमोक्रेसी को ही उसका दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि और भी कई कारण है। जेनी फिर से कहती है, whatever, how does it make a difference? The point is that it can't be the best form of government. Democracy is all about chaos and instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? हमारे देश के नेता आपस में लड़ते रहते हैं। फलाने इस पार्टी ने कुछ गलत किया तो दूसरी ऑपोजिशन आके उन पर कीचड़ उछालेगी, उनका कुछ गलती हुआ तो वो कीचड़ उछालेंगे, आपस में लड़ते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी बहस करते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी का फायदा क्या है? जो जनता के बारे में सोचते नहीं और अपने अपने घरों को भर रहे हैं, अपने अपने करप्शन करके दुनिया भर का पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं। ऐसे नेताओं का, ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टियों का, इस तरह के शासन व्यवस्था का क्या फायदा? जेनी कहती है। प्रोमेन कहता है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? डेमोक्रेसी नहीं तो क्या? इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं? कौन सा सरकार का बेस्ट फॉर्म है जो डेमोक्रेसी से भी अच्छा है? Go back to the British rule, invite some kings to rule this country. चले जाओ फिर अंग्रेजों के पास, उनसे हाथ जोड़ो, चलिए हमारे देश में फिर से हमें गुलाम बना लीजिए, हमारे देश को चलाइए, हम नहीं चला पा रहे। तो ऐसा रोजी कहती है, I don't know. I think what this country needs is a stronger leader, someone who does not have a
who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all powers. He should be able to do whatever is needed in a democratic interest. Then alone can remove corruption and poverty from this country. ये बोलती है, ये लड़की बोल रही है कि हमारे देश को किसी दूसरी शासन व्यवस्था की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो पूरी विधि व्यवस्था, पार्लियामेंट, चुनाव, इन सब चीजों से ऊपर सोचे और हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, सारे डिसीजंस खुद ले, जो चाहे वो करे, गरीबी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर सके, उसकी पूरी स्वतंत्रता उसके पास होनी चाहिए, ऐसा कहती है। Someone shouted, किसी ने, दूसरे ने आवाज लगाई, that is called dictatorship. इसी चीज को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं, जैसा कि आज नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर तानाशाह किम जोंग उन कर रहा है, उसे ही तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। जो मर्जी वो करो, किसी जनता की कोई परवाह नहीं, लोगों की खुशियों का, लोगों के अधिकारों का, मानवाधिकारों का हनन उल्लंघन, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। रोज होई नाम का एक दूसरा स्टूडेंट है, she is saying or he is saying, I don't know whether it says female or what if a person starts using all these powers to himself and his family? What if he is corrupt himself? क्या होगा यदि वो जो लीडर हमने चुना है वो खुद ही करप्ट हो, सारे देश की संपत्तियों का प्रयोग वो अपने परिवार के लिए और खुद के लिए करे, खुद ही भ्रष्ट हो, तो क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा? रोज कहता, आई एम स्पीकिंग ओनली द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ एक ईमानदार, मजबूत और सिंसियर लीडर की, नॉट द करप्ट वन। बट दैट इज नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप। आप एक लोकतांत्रिक देश को एक तानाशाही देश से तुलना कर रहे हैं। We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. Go and check the record of the dictators in real life. आज जितने भी तानाशाह दुनिया में हैं, वो लोग खुद इतने भ्रष्ट हैं और बुरी आदतों से व्यस्त, लत लगी हुई है। They are most corrupt, selfish and brutal. ये सब निर्दयी हैं और बहुत ही सेल्फिश है, यानी सेल्फिश को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वार्थी है, अपने भले का सोचने वाला सेल्फिश कहलाता है। They are most corrupt, okay, brutal, निर्दयी हैं। It is just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. जो बुरी चीजें हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं। Madam Lingdo was listening to this discussion with interest. सभी बच्चों की बातों को मैडम लिंगडो सुन रही थी ध्यानपूर्वक। Now she stepped in, अब वो आती है बीच में, बहस के बीच में वो अपनी राय देती हैं। I was delighted to see you all arguing so passionately. आप सभी लोग इतनी ऊर्जा से, इतने जज्बाती रूप से इस डिबेट में आप शामिल हो रहे थे। I don't know who is right and who is wrong. मैं नहीं जानती आप में से कौन गलत और कौन सही है। That is for your settle, but I did feel that you all wanted to speak your mind. आप सभी अपने विचारों को रखना चाहते थे, जो आपके मन में बातें आई वो बातें आप कहना चाहते थे। You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. आपने जो कुछ कहा उसके लिए किसी ने आप पर बुरा कमेंट किया, इस बात का आपको बुरा लग सकता है, या आप कुछ कहना चाह रहे हैं और कोई आपको चुप करा दे तो किस तरह का बुरा लगता है, ये आपने महसूस किया इस डिबेट के दौरान। Would you be able to do that in a country that is not democratic? क्या आप जो बातें अपनी कहना चाहते हैं वो कह पा रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से ही हम कह पा रहे हैं। आज हमारी सरकार, मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर पा रही है, कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही है, कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, तो हमारे देश में लोग, मीडिया, सभी लोग इस सरकार की बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही तो डेमोक्रेटिक होने का लाभ है, जहां पे हम अपनी सरकारों को भी बुरा बोल सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। Is that a good argument for democracy? So today we covered this chapter and we will take this chapter ahead in the next lecture also. Argument against democracy. Now so far we have discussed too many things.
that what are the good thing about democracy, what are the bad thing about democracy. But there are bad things also. Meanwhile, I am giving you a homework as well. Note this down, and after that I will take this chapter ahead today. You have to write 5 merits of democracy and 5 demerits of democracy. 5 गुण तथा 5 दोष, लोकतंत्र के 5 गुण तथा 5 दोषों का उल्लेख आपको करना है. You can do it in a tabular form, you can do it point wise as well. So arguments against democracy. लोकतंत्र के विरुद्ध जाने वाली कुछ बातें हैं, क्या है जानते हैं. This conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. Let's go over some of these arguments. अब हम देखते हैं, विचार बनाते हैं क्या है बातें वैसे. Leaders keep changing in a democracy. These leads to instability. डेमोक्रेसी में नेता जो है बार बार चेंज होते रहते हैं. आज इनकी सरकार है, 5 साल के बाद वो हार जाते हैं, कोई और सरकार में आ जाते हैं. इनके द्वारा जो काम चलाया जा रहा था उस काम को अगली सरकार आके बंद कर सकती है. सरकारें कई बार बीच में मध्य अवधि में ही सरकारें निरस्त हो जाती हैं, गिर जाती हैं. समर्थन कुछ पार्टियां हटा लेती हैं, सरकारें गिर जाती हैं. तो इसमें बार बार नेता बदलता रहता है. एक डिमेरिट है जिसमें कि नेता को पता है कि यहाँ काम करना है और वो गिर गया, उसकी सरकार चली गई, उन कामों को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. डेमोक्रेसी में पूरा ही पॉलिटिकल कंपटीशन है. ये कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टी, वो पार्टी, सारी पार्टी आपस में लड़ती है, चुनाव लड़ती है, लोगों से वोट मांगती हैं, अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं. सत्ता में आने के लिए सारे प्रकार के साम दाम दंड भेद वाले तरीकों को अपनाया जाता है. कुछ भी करके किसी भी तरह कुर्सी तक पहुंचा जाए, इस तरह का चेयर रेस चलता रहता है इनके बीच. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. बहुत सारी प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है. डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई काम होना हो तो एक प्रतिनिधि लिख करके भेजेगा दूसरे के यहाँ, फिर प्रतिनिधि ऑर्डर देगा बड़े नेता को, बड़े नेता का परमिशन होगा तब जाएगा डीएम के पास, डीएम से आएगा पीडब्ल्यूडी के पास, तब जाके कहीं किसी सड़क का नाले का निर्माण होगा. इसमें बहुत सारे डिलेज है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है. इसलिए सारी काम में बहुत ज्यादा विलंब होता है, समय लगता है. So many people have to be done. Elected leaders do not know best interest of the people. It leads to bad decision. सरकारों को और जो चुने हुए नेता है इन्हें ये पता नहीं है कि जनता के हित में कौन सा फैसला काम करने वाला है, कौन सी बातें हैं जो जनता के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है. इसलिए गलत डिसीजंस भी लेते हैं ये लोग. Democracy leads to corruption, for it is based on the electoral competition. इसमें क्या करप्शन भी होता है क्योंकि चुनाव जीतना है, चुनाव में लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं लोग, पैसे दे करके वोट खरीदते हैं, तरह तरह की चीजें दी जाती है वोटरों को अपनी ओर झुकाने के लिए, अपनी ओर ललचाने के लिए, उनको किसी तरह से वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जाता है, तरह तरह के उन्हें प्रलोभन दिए जाते हैं. Ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. और आम आदमी को तो ये भी पता नहीं कि हमारे लिए बेहतर क्या है, सरकारें क्या कर रही है. ये पैसे जो लगा रही है विभिन्न प्रकार के कमोडिटीज पे जो टैक्सेस लगा रही है, आज पेट्रोल पर 40 से 50 रुपए का टैक्स है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं प्रति लीटर पर, और इनका क्या हो रहा है ये हमें पता भी नहीं. और क्या हमारे लिए होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा. इवन most of the people don't know this also. So are there some other arguments against democracy that you can think of? आप अगर सोच सकते हैं कुछ डेमोक्रेसी में और भी बुराइयां हो, इन बुराइयों के अलावा, तो आप उस पॉइंट्स को भी लिखें. Which of these arguments applies mainly to the democracy? Which of these can apply to the misuse of any form of government? Which of these do you agree with? इनमें से किन बातों पर आप सहमत हैं? कौन कौन सी बातें हैं जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी प्रभावित कर सकती है? साथ साथ डेमोक्रेसी के बारे में और कुछ आपकी राय हो जो नेगेटिव अगेंस्ट द डेमोक्रेसी हो, वो आप बातों को लिख सकते हैं. क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स.
डेमोक्रेसी जो है ना वो हर चीजों की जादुई कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है, इसको घुमाया लोकतंत्र की छड़ी घूमी सारे दुख दर्द गायब, सारी गरीबी और कष्ट गायब हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। It has not ended poverty in the country and in other parts of the world. Democracy is the form of government only ensures that people take their own decisions. इस डेमोक्रेसी में सिर्फ यही बात का हमें हक मिला है, हम लोग अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं, लेकिन वो नेता हमारे पसंद के काम को करेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। This does not guarantee that their decisions will be good. और हमने जिस नेता को चुना वही बाद में भ्रष्ट बन जाए, नीयत खराब हो जाए उसकी, तो वो काम का आदमी भी निकम्मा बन जाता है। People can make mistakes. Involving the people in these decisions does lead the delays in decision making. It is also true that the democracy leads to frequent changes in the leadership. डेमोक्रेसी के कारण बार बार लीडरशिप में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. So these arguments show that the democracy is one of kind which they may not be the ideal form of government. इस तरह से इन बातों पर ध्यान देने पर यह पता चलता है कि डेमोक्रेसी is not the best form of government. These arguments show that, okay, but that is not a question we face it in real life. The real question we face is different. Is democracy better than the other forms of government? That are these for us to choose from. जैसे कि हमारे यहाँ अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की और डेमोक्रेसी है। इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है? Most of the people will say democracy definitely, but there are some setbacks and the demerits of democracy as well, as we discussed in this chapter. So tomorrow we will take this part of the chapter ahead. Tomorrow we will study the points those which are in favor of the democracy. Today we studied the points that are against the democracy. So thank you so much, and make those homework that I gave you today. Write it down in a rough notebook, send it in the group between 6 o'clock to 7 o'clock in the night today. Thank you, have a nice day.